लास्ट क्लास हमने किया था। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी करना था ना मुझे, याद आ गया। और टेस्ट मैंने कब रखा है? 18th। यस वे सर। ऑप्टिक्स का। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा मैं। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व वर्सेस मास नंबर, 3 मार्क। या तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ आएगा 3 मार्क का, या इसके साथ चॉइस में आएगा द न्यूमेरिकल वी जब डिड इन द लास्ट क्लास, राइट। उन दोनों में से एक चीज पक्का आएगा। नाउ लेट्स plot this graph. फिर इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, दिस इज मास नंबर। 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. This is the binding energy on the y-axis. Binding energy per nucleon. When you divide the binding energy by the mass number, it is binding energy per nucleon. It is a very important parameter which basically tells us about the relative stability of an atom. 2, 4, 6, 8, 10. For iron, it is maximum. Otherwise, the graph goes like this. On the y-axis, we have binding energy per nucleon in MeV. Hydrogen, helium, carbon, oxygen. Iron 56 has the maximum binding energy, which is equal to 8.8 MeV. मनन मार्क्स मिल गए तुम्हें? नहीं सर, अभी दिया नहीं है स्कूल वालों ने। अच्छा, कब एग्जाम कब खत्म हो तुम्हारे? सर एग्जाम खत्म हो गए। प्रिंसिपल ने अपेरेंटली सब टीचर्स को बोला हुआ है मार्क्स अभी दो मत। अच्छा, तो पता नहीं सर कब देंगे। चलो बनाओ, ग्राफ बनाओ।
बन गया, डायग्राम बन गया सभी का? लिखो इसका डिस्क्रिप्शन, as shown in diagram, as shown in diagram. lighter lighter atoms, nuclei of lighter atoms, nuclei of lighter atoms have low values of binding energy per nucleon. Nuclei of lighter atoms, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, have low values of binding energy per nucleon. Iron 56, Fe56, Fe56 has maximum binding energy per nucleon, have maximum binding energy per nucleon. Iron 56, Fe56 has maximum binding energy per nucleon, which is equal to 8.8, which is equal to 8.8 MeV, mega electron volt, which is 8.8 MeV. Next point देखो, nuclei having mass number, nuclei having mass number between 30 to 120, between 30 to 120 have nuclei between mass number 30 to 120 have binding energy per nucleon, binding energy, average binding energy per nucleon, average binding energy per nucleon around 8.5, average binding energy per nucleon around 8.5 MeV. Heavy nuclei, next point, heavy nuclei, heavy nuclei whose mass number is more than 120, heavy nuclei whose mass number is more than 120, whose mass number is more than 120, have binding energy, have binding energy less than 8 MeV, less than 8 mega electron volt, 8 MeV, less than 8 MeV, right? तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है ग्राफ से. अब नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड? मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच टेल्स अस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. तो लिखो लाइट, nuclei of light atoms, nuclei of light atoms are less stable, are less stable, are less stable as their binding energy per nucleon is less, as their binding energy per nucleon is less. तो एक बार वापस बोल दो. Nuclei of lighter atoms, nuclei of lighter atoms are less stable, nuclei of lighter atoms are less stable as their binding energy per nucleon is less than 8 MeV. These nuclei undergo
undergo the process of fusion. These nuclei undergo the process of fusion. फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर हेवी न्यूक्लियर बनाते हैं. As a result, large amount of energy is released. So that process called fusion. Fusion basically takes place inside any star. Like sun is a star, तो उसमें फ्यूजन प्रोसेस होता है. हाइड्रोजन पहले हीलियम में कन्वर्ट होता है, फिर हीलियम में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में, और फिर एनर्जी भी रिलीज होती है. एंड दिस एनर्जी इज क्वाइट क्लीन. नो रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. ये होता है. आगे लिखो. heavy nuclei heavy nuclei are also unstable. Heavy nuclei are also unstable due to heavy nuclei are also unstable due to their low binding energy per nucleon. Due to their low binding energy per nucleon, these nuclei break into lighter nuclei. These nuclei break into lighter nuclei along with tremendous amount of energy. Along with tremendous amount of energy. And this process called fission. And this process is called fission. तो तुमने देखा होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन होता है. कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस को कहा जाता है. एंड इफ इट्स अनकंट्रोल्ड, इट इज बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब. So this is the binding energy curve, observation and the conclusion. 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. इसके साथ चॉइस में आएगा जो न्यूमेरिकल में लास्ट क्लासेस में किए थे. मनन, तुमने पूरा डुअल नेचर मिस कर दिया ना, तो वो देख लेना. हाँ सर, हाँ बट लेक्चर देख लूंगा मैं सर. हाँ, उसको देख लेना क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने बताया था कि लाइटर न्यूक्लियाई एड अप टू गिव स्टेबलर, मोर स्टेबलर एंड हैवी न्यूक्लियाई अलोंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे कि सन में क्या होता है, you have 1h2, 4 atoms of 1h2. 2 ही ले लेते हैं, इससे भी हो जाएगा हमारा. One H2 plus 1H2, both are deuteron, will combine to form helium nuclei, and approximately 24 MeV energy is released. So this is the process of fusion. So per reaction 24 MeV release हो रहा है. और देखा जाए तो एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी रिलीज हो रही है. एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर तुम देखोगे, इसमें 4 न्यूक्लियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 2 and 2 मास नंबर 4 हो गया. 6 MeV is quite large. But the only problem is, to initiate fusion, you have to have extremely high temperature and pressure. To initiate process of fusion, we have to have high pressure and temperature. So that is a problem कि normal conditions में we can't have nuclear fusion because energy release in fusion, because hydrogen is abundance. हाइड्रोजन को क्लब करके तुम हीलियम बना सकते हो और एनर्जी रिलीज कर सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड सो very high temperature, which is not practically possible to have in a physical boundary, because इतना high temperature होता है कि वो physical boundary melt हो जाएगी. तो nowadays scientists of various countries, India is also part of those countries,
they're trying to initiate fusion under a strong magnetic field, non-physical boundary में magnetic field के अंदर they want to start nuclear fusion and the day it's possible energy release इतना easy हो जाएगा process और इतना cheap हो जाएगा कि जो energy होगी वो बहुत सस्ती हो जाएगी, but it's not yet possible because इसके कोई बाय प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जो कि harmful है. Whereas in case of nuclear fission, and that is why हाइड्रोजन बम में ये वाला प्रोसेस होता है, but to detonate हाइड्रोजन बम first you have to detonate atomic bomb. तो जो भी एनर्जी और प्रेशर रिलीज होगा एटॉमिक बॉम्ब में दैट बी यूज टू डिटोनेट हाइड्रोजन बॉम्ब. जैसे इंडिया ने पोखरण में ब्लास्ट किया था हाइड्रोजन बॉम्ब का, तो पहले एटॉमिक बॉम्ब को डिफ्यूज की वो किया एक्सप्लोड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब को किया था. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम they break into lighter nuclei and in the process tremendous amount of energy is released. But the only problem with fission is that जिनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं they are all radioactive, तो उनको डिस्पोज करना itself is a big issue. तो यूरेनियम 235 पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेगा, एज अ रिजल्ट बेरियम विल बी प्रोड्यूस, क्रिप्टॉन विल बी प्रोड्यूस, 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे एंड लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 200 MeV. बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टन का होता है 36. 56 प्लस 96 92 हो गया, ये 92 होता है. 92 प्लस 3 95, 95 में इसको माइनस करो कितना आएगा, 141 हो गया. देखो बैलेंस हो रहा है मास नंबर. 141 प्लस 92 प्लस 1 कितना हुआ, 236. 235 प्लस 1, 56 प्लस 92 प्लस 0 92. So this is the nuclear fission reaction which occurs in a nuclear reactor. जैसे अभी 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो इनमें से अगर 2 न्यूट्रॉन को हम एब्जॉर्ब कर लें और एक ही न्यूट्रॉन को रिलीज छोड़ें फॉर फर्दर रिएक्शन, देन इट्स ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है. और अगर तीनों के तीनों न्यूट्रॉन फर्दर 3 एटम्स को हिट करेंगे यूरेनियम के, वो 3 में से 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 9 को करेंगे, सो देयर विल बी चेन रिएक्शन एंड दैट इज नथिंग बट एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक एक्सप्लोजन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. बट न्यूक्लियर रिएक्टर में 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उनमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक ही रिलीज किया जाता है फॉर फर्दर रिएक्शन. तो यहाँ पे इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ मास नंबर कितने में, 235 प्लस 1 236. 236 की वजह से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 200 MeV. तो पर एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना हो गया, एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मच लेस कंपेयर टू फ्यूजन. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम less than 1. At the same time, these byproducts are also radioactive. तो इनको बड़े बड़े लेड क्रूसिबल्स में डाल के डीप इनसाइड द अर्थ और सी में डिस्पोज करते हैं. ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस. डिवाइसेस तो रहा ही नहीं, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर इतना बड़ा हुआ करता था पहले, कम्युनिकेशन भी था उसमें, सारा डिलीट हो गया अब. दिस चैप्टर इज completely theoretical. जो भी 20th सेंचुरी में डिस्कवरी हुए सारी इसी पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर्स. तुम आजकल तुम न्यूज़ में पढ़ते भी हो सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, वो सारा इस यही है. इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ इजी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, है ना. कंडक्टर्स क्या है, वो मटेरियल जो कि
इजी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं, मतलब दे ऑफर वेरी लिटिल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम. एग्जांपल्स: कॉपर, iron, silver is the best conductor. And then you have insulators. Insulators are those materials which do not allow passage of electricity through them because they offer high resistance to the flow of electrons. And insulators are plastics, rubber, etc., dry wood. But in between conductors and insulators, we have another type of material called semiconductor. Semiconductors elemental भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं. The semiconductors are those materials whose conductivity is less than that of conductor, but more than that of insulator. लिख लो. Semiconductors are those materials. Semiconductors are those materials whose conductivity is less than whose conductivity is less than that of conductors, whose conductivity is less than that of conductors, but more than that of insulators, but more than that of insulators. Elements of 14 group exhibit this property. Elements of 14 group exhibit this property. बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 14 ग्रुप में? क्या बात कर, ये तो कार्बन होता है, कार्बन यूज नहीं होता है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यूरेनियम. दे हैव द 4 इलेक्ट्रॉन द आउटरमोस्ट शेल, है ना. इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, so will be 2 4 कॉन्फ़िगरेशन ना. सिलिकॉन का कितना 14, तो हो जाएगा 2 8 4. तो बेसिकली कॉमर्शियली तो वी यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एज semiconductors. These have 4 electrons in their outermost shell. So elemental semiconductors हैं 14 ग्रुप के elements. अगर हम किसी कंडक्टर में सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी मिक्स ना करें तो these are called pure semiconductors or intrinsic semiconductors. Pure semiconductors or intrinsic semiconductors.
पहले समझ लेते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे होती है. Suppose it's a pure semiconductor. When you apply voltage across it, this is milliammeter. Say ये silicon है. This is also silicon. The diagram बनाओ एक बार. We are basically discussing and understanding passage of flow of electric current through a semiconductor. तो as such silicon का atomic number होता है 14 and electronic configuration is 284. देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6 and then 3s2, 3p2. outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो to complete octet it will either donate all 4 electrons or it will share 4 electrons with the neighboring 4 silicon atoms. देखो यहाँ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है, एक इसका अपना है. तो इस तरह से at low temperature all 4 single bonds are completed and the electrons are bound by the nucleus. So this is the situation of a pure semiconductor at low temperature. गरिमा कहाँ है आज? अनन्या? सर वो एक बर्थडे पार्टी पे गई है। अच्छा. तो अभी क्या हो रहा है? अभी एट लो टेम्परेचर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए. तो देर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज सच. तो होता है क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज रेज, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, energy of the electron will also increase. As a result, some of the electrons will leave the bond, ये फ्री हो जाएंगे और यहाँ पे there'll be deficiency of electron. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया. तो इस बॉन्ड में एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई.
तो जो मैंने अभी सर्कल बनाया हुआ है दैट इज डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था, तो उसको मैंने सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, प्रेजेंट था बॉन्डिंग में, तो आई ड्रू अ सॉलिड सर्कल। बट ये इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ एनर्जी received from the temperature is as the temperature raised has left the has broken the bond, valence bond, and it has become free in the crystal, free to conduct electricity. So now this is a conduction electron. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग दूसरा डायग्राम बनाना, वहां पे शो करना है इसको। डोंट शो इन द सेम डायग्राम, ड्रॉ अनदर वन where you showed electron has left the bond। और वो जो deficiency है, that deficiency of electron will be treated as positive charge and it is called hole। So now a hole is created over here। Deficiency of electron or negative charge is called a hole, which is said to be a positively charged। तो अब क्या हुआ, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एंड दिस अ वेरिएबल पोटेंशियल, तो दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द अदर एंड इज अ लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल इज नेगेटिव, सो होल विल ट्राई टू मूव दिस वे। होल का मोशन किधर होगा? टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल तरफ मूव करता है, वेयर इज दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, free electron will move towards higher potential। A negative charge always moves towards higher potential। The negative charge will move towards higher potential, positive charge will move towards lower potential। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि होल कैसे मूव करेगा। होल तो बेसिकली देखा जाए तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होल का मोशन ऐसे होता है कि when you increase the potential difference, maybe यहां से एक इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें जम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर, और यहाँ पे एक डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस होल में जम कर गया और यहाँ पे एक डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट यहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। तो होल इन ए वे इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसी तरह से होल का मोशन टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। एंड एज यू नो, current is motion of positive charge, IH is basically current due to hole। IE is current due to electrons। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, लेकिन IE किधर होगा? IE भी टुवर्ड्स राइट ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, जो कि नेगेटिव चार्ज है, बट कन्वेंशनली करंट इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज करंट विल फ्लो लेफ्ट टू राइट। एज अ रिजल्ट क्या होगा? The total current will be IH plus IE। I is IH plus IE।
IH is the current due to the motion of holes. IA is current due to electrons. And इलेक्ट्रिसिटी में तुमने पढ़ा था I is equal to क्या होता है NEA VD. So we can use this also. Current due to hole क्या होगी NH, hole density, charge on a hole is the same as electron, area of cross section of the conductor, semiconductor, and VD को मैं VH लिख रहा हूँ, drift velocity of hole, NEEA VE. VH is drift velocity of hole. V is drift speed of electron. A is area of cross section. हालांकि this mathematical treatment is been deleted now. फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ. And then I क्या होता है V by R. E a common ले लो, NH VH NE VE. What is R? R is rho L by rho is resistivity. Resistivity का रेशियो क्या होता है कंडक्टिविटी. रेसिस्टिविटी का रेशियो रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी. तो R की जगह we can substitute. V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ. R को मैंने सब्स्टिट्यूट किया L by sigma A. A कट जाएगा, L भी कट जाएगा, सिग्मा आ गया. कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला डेराइव हो गया. सिग्मा इज इक्वल टू E NH VH by E. जरा याद करो हमने क्या था ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मोबिलिटी. So this is the formula for mobility. NH mu H. Mu H is mobility for holes. Mu is mobility for electrons. Drift speed divided by electric field is called mobility. Yeah. This sigma का formula हो गया. So this is how a semiconductor basically allows passage of current. तो semiconductor में passage of current is because of electrons as well as holes. But the problem is that pure semiconductor में conductivity is temperature based. It is temperature dependent. मान लो कोई सेमीकंडक्टर वर्क कर रहा है हाई टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस वर्क कर रहा है. But that same semiconductor device will not work when the temperature is 10 degrees Celsius. So commercially, it's not possible for us to use a pure semiconductor because its conductivity is temperature dependent. So that's the reason pure semiconductors are not used.
There's a term called intrinsic charge density. Intrinsic charge density. It is Ni square is equal to Ne into Nh. Because pure semiconductor में number of holes and number of electrons will be the same, right? Pure semiconductor में अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से दूर जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसमें एक ही होल क्रिएट होगा. तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल. दूसरी बात, द कंडक्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. कम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर विल नॉट allow passage of current because very few holes and electrons will be available. At higher temperature, more holes and more electrons will be available, so they'll allow passage of electricity. So that is why commercially we do not use pure semiconductors. एक बार इसको गो थ्रू करो, फिर आगे बढ़ते हैं. दोबारा से देख लो, क्योंकि पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, कोई खास इसमें है नहीं. फ्री के मार्क्स हैं, इसको तुम समझ लोगे तो विल बी एबल टू आंसर, गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. सर ये वाला चैप्टर कब तक खत्म होगा? नेक्स्ट 2 क्लासेस. अगली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा. क्यों, क्या हुआ, आ रहा है एग्जाम में? यस सर, प्री बोर्ड में तो आएगा ही ना सभी. तो प्री बोर्ड तो नवंबर में होगा. सर तब भी. 2 क्लास का मतलब क्या हुआ, दिवाली के पहले ही खत्म हो जाएगा. हम्म. फिर टेस्ट और रिवीजन करेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. As we have seen that pure semiconductor or intrinsic semiconductor is of no use commercially for us because its conductivity is temperature dependent. तो हम क्या करते हैं, we mix impurities. Some impurities are mixed in parts per million, ppm. ppm का मतलब parts per million. Million of pure semiconductor में a few atoms of other elements will be added. That's called mixing of impurity atoms is called doping. Mixing of impurity atoms is called doping. 2 टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं. या तो हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, या फिर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे. Tell me some element which are in 13 group. एल्यूमिनियम होता है, और
गैलियम, बोरॉन। हम्म। बिस्मथ किस में होता है? इसमें तो इतने नहीं होते हैं। 15th में। फॉस्फोरस तो यूज करेंगे नहीं बिकॉज आर्सेनिक यूज करते हैं। इसमें बिस्मथ होता है 15th के हाँ, अंदर। क्या इसमें हुआ? होता है बिस्मथ। आर्सेनिक बिस्मथ। इंडियम इज आई थिंक एंटीमनी। यस, एंटीमनी का होता है सिंबल एसबी। एंटीमनी तो एसबी हो गया ना। तो एसबी भी 15 ग्रुप में है क्या? शायद। हाँ। इंडियम इज द 13 ग्रुप। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को जब तुम मिक्स करोगे प्योर सेमीकंडक्टर में, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? जबकि यहाँ पे क्या होगा? there'll be 5 electrons in the outermost shell. So when you mix 13 group element, the result would be a p-type semiconductor. And you mix when 15 group of element, the pure semiconductor, it is resulting in n-type semiconductor. लिख लो। अब पहले हम डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। लिख लो। when elements of 13 group, when element of 13 group is mixed with a pure semiconductor, is is mixed with a pure semiconductor, it results it results in it results in p-type semiconductor. It results in p-type semiconductor. This mixing is done in parts per million. This mixing is done in parts per million. That is very few atoms of impurity. That is very few atoms of impurity are mixed with pure semiconductor. तो इंडियम ले लेते हैं। It is silicon. Silicon atom has 4 electrons in the outermost shell. इधर डायग्राम बनाओ।
अब क्या होगा, वेल फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिलिकॉन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा विद द सराउंडिंग 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है। इट हैज कंप्लीटेड 4 सिंगल बॉन्ड्स। प्रॉब्लम आएगी इंडियम के साथ, बिकॉज इंडियम हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो सिलिकॉन, एक इंडियम का इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन का। एक सिलिकॉन का। अब क्या हुआ, 4th बॉन्ड के लिए इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। So what it does, it will snatch 1 electron from the neighboring silicon-silicon bond. As a result, इसका तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये सराउंडिंग सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब इंडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड इट हैज बिकम इंडियम आयन। तो उसको बोला जाएगा एक्सेप्टर एटम, एंड नाउ इट हैज बिकम एक्सेप्टर आयन। तो अब क्या हो रहा है, फॉर ईच इंडियम 1 इंडियम एटम 1 एक्स्ट्रा होल इज क्रिएटेड। जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, मान लो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्योर सेमीकंडक्टर में सेम होते हैं, अभी डिस्कस किया था ना हमने। सपोज देयर वर 500 इलेक्ट्रॉन्स एंड 500 होल्स। In a pure semiconductor, number of holes and number of electrons are equal. लेकिन अगर सपोज हमने 200 इंडियम एटम्स को ट्राइवेलेंट एटम को मिक्स किया, बिकॉज ट्राइवेलेंट एटम को मिक्स करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, तो 300 एटम्स आर मिक्स्ड, तो 300 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज हर एक्स्ट्रा इंडियम एटम के लिए 1 एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो रहा है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 800, ये रह जाएगा 500। कहने का मतलब number of holes will be more than number of electrons. So p-type semiconductor में majority charge carriers are holes. P for positive, positive are the holes. ऐसे याद करो. In a p-type semiconductor, majority charge carriers are holes. और जितने एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एटम हमने डाले इसमें, उतने ही एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो गए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। अब इसकी थोड़ी स्टोरी भी लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये वाला डायग्राम बनेगा, ये इक्वेशन लिख देना, एंड थोड़ी सी कहानी भी लिखते हैं। लिखो when a pure semiconductor when a pure semiconductor is mixed with some trivalent atom is mixed with some trivalent atoms like boron, indium, a p-type semiconductor is formed. A p-type semiconductor is formed. A p-type semiconductor is formed. When trivalent atom
when trivalent atom is surrounded by when trivalent atom is surrounded by four atoms of silicon oblique germanium atoms, silicon oblique germanium atoms. It forms three single bonds. It forms three single bonds with these atoms. By sharing its three electrons. मतलब तीन सराउंडिंग एटम के साथ इसने तीन बॉन्ड बना लिए. नाउ फॉर द फोर्थ बॉन्ड लिखो. नाउ फॉर द फोर्थ बॉन्ड it does not have electron. For the fourth bond, it does not have electron. So it snatches one electron. So it snatches one electron from the surrounding silicon atom bond. From the surrounding silicon bond, thereby creating one extra hole. Thereby creating one extra hole. This way, impurity atom becomes a negatively charged ion. Impurity atom becomes negatively charged ion called acceptor ion. And majority charge carriers are holes in a p-type semiconductor. Majority charge carriers are holes in a p-type semiconductor. अब इसको represent कैसे करोगे p-type semiconductor को? Because all the time you won't be drawing all these, atoms and their bonds and all. So a simple way of representing a p-type semiconductor is this. p मतलब holes, p मतलब positive are holes are free. Majority charge carriers are holes, है ना? तो holes are free to conduct. लेकिन ion fixed है, तो ion को will show in a circle. These ions are negatively charged and they are fixed. तो उनको हम सर्कल में शो करेंगे. तो p टाइप सेमीकंडक्टर में these are trivalent acceptor ions, चाहे वो इंडियम हो, बोरोन हो, एल्यूमिनियम हो, because these atoms have taken one electron and become negatively charged. पर जितने एटम्स हमने मिक्स किए थे उतने ही एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हुए हैं. बट होल्स आर फ्री टू कंडक्ट. तो होल्स को विल शो विदाउट सर्कल in equal numbers. So these are free holes. So this is how you represent a p-type semiconductor. Negative charge को inside circle show करोगे, which basically means that these ions are bound by the
crystal in the crystal by bonds. They are not movable, they are fixed. Whereas holes will be shown without circle. So this is a representative of p-type semiconductor. But देखा जाए तो as a whole, it is electrically neutral. A p-type semiconductor is electrically neutral because number of holes and number of electrons are the same. एक बार इसको गो थ्रू कर लो पूरा, दोबारा से इसको याद कर लो, बिकॉज अब तो सीधा सीधा प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। करो 5 मिनट में दोबारा से पी टाइप कैसे हो गया है? याद हो गया? दोबारा बना सकते हो खुद से? एक काम करो, दोनों डायग्राम ड्रॉ करो खुद से एंड शो इट टू मी। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा था। क्यों? वो आपने कुछ लिखा था, वो मिस हो गया था। ठीक है सर। बिना देखे इसको बनाओ, फिर मेरे को व्हाट्सएप करो ये क्या बनाया तुमने। ड्रॉ करो बिना देखे नेक्स्ट पेज पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसको रिप्रेजेंटेशन।
अगर से तुमने सिलिकॉन वाला जो बनाया वो कैसे बनाया उसके बीच वाला तो है ही नहीं। मतलब सर? ठीक। सिलिकॉन सिलिकॉन में भी तो बॉन्ड बनेगा। कौन से वाले लाइक? जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है, हाँ जी। एक तो इंडियम तो ठीक है, हाँ लेफ्ट जी। में तो सिलिकॉन में 5 बनाओगे ना वहाँ पे। अच्छा, वो बीच में मैंने एक नहीं बनाया, ठीक है ठीक है, ओके। एग्जैक्टली सेम बनाओ। मैंने तुमने बनाया। सर याद नहीं हुआ, मतलब बनाया है बट अच्छा नहीं। अच्छा। तो एक बार आप देख सकते हो, अब मैंने भेज दिया फिर से। अभी तो ये तो गलत हो गया, तो सारे बॉन्ड कैसे बन गए? मैं ऐसा समझा नहीं, इसमें होल आया कैसे फिर, अगर ऐसे नहीं तो? अगर बीच में तुमने 5 बना दिए तो देखो कि एक सिलिकॉन इधर पास वाले से बना रहा है, इधर वाले मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करा करा तुमने। तुमने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, ये भी कर दिया। अच्छा ओ, ठीक है। देख लो अब एक बार ढंग से। ठीक है सर। ये बीच में सर्कल क्या बनाया तुमने? इंडियम को कहाँ दिखाया है? अच्छा वो काटा हुआ है। अनन्या। सर वो फ्लो फ्लो में पहले 3 बना दिए थे बीच में, फिर याद आया कि वो दो हैं। ठीक है। आरव बन गया। सर एक मिनट, मैं जस्ट अभी घर आया हूँ, मैं फोन से कॉल ले रहा था पहले। अच्छा। शना उसको लेबल करो, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा एक्सेप्टर आयन है, वो सारा लिखो, लेबलिंग करो। बाकी ठीक है ना? हम्म। अब इसमें अगर सिर्फ तुम्हारा डायग्राम सही हुआ, लेकिन इसमें तुम्हें वो शो करने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है सर। ये शो करो, ये वाले ना सर्कल बना दो, डार्क ठीक सॉलिड है। सर्कल्स। इसका दूसरा भी बनाओ डायग्राम आरव। हाँ जी सर। तो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? some atoms of pentavalent atoms are mixed with a pure semiconductor. इस बार हम ले लेते हैं आर्सेनिक एंड जर्मेनियम ले लेते हैं इधर। आर्सेनिक को सराउंड करो 4 जर्मेनियम एटम से, और साथ में एक और भी जर्मेनियम एटम दिखा दो। जर्मेनियम बहुत सारे होंगे, आर्सेनिक एक ही शो करना है, बिकॉज मिक्सिंग इज डन पार्ट्स पर मिलियन।
So when pentavalent atom is mixed with a pure semiconductor, n type semiconductor is ठीक है. ठीक है आरव, मनन ठीक है. Perfect. So when pentavalent impurity atom is mixed with pure semiconductor, intrinsic semiconductor, n-type semiconductor is formed. Now it's pentavalent. It has 5 electrons in its outermost shell, right? Whereas silicon के पास, जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. जर्मेनियम अपने सराउंडिंग 4 एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एन ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएगा. So germanium atom has shared 4 of its electrons with the surrounding 4 germanium atoms and completed its octet. आर्सेनिक के पास 5 हैं, एक एक्स्ट्रा है. अब आर्सेनिक क्या करेगा? आर्सेनिक भी 4 सराउंडिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो शेयर कर लेगा. लेकिन इट हैज लेफ्ट विद 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. वो ये क्रिस्टल लेटिस को डोनेट कर देगा. इट सेल्फ बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन. So it will donate 1 of its electron to the crystal lattice, and as a result एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. So it has been become donor ion, which is positively charged, and this is donor atom. So with each extra impurity atom which is pentavalent, 1 extra electron अब पूरे क्रिस्टल में आ जाएगा. जैसे कि मान लो number of holes and number of electrons initially थे 400 each in a pure semiconductor. हमने 300 impurity atom डाल दिए pentavalent, उसने 300 extra electron क्रिस्टल को दे दिए. 700 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, जबकि होल्स वही रहेंगे. सो नंबर ऑफ होल्स आर लेस देन नंबर ऑफ electrons. The majority charge carriers will be electrons. So in a n-type semiconductor, n for negative electron है. Majority charge carriers are electrons. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को? N means negative charge electron is conducting. The positive ions are bound. Donor ions are bound by
bonds, so they are fixed, they are not mobile, they are not contributing in passage of electric current. लेकिन electrons are free to move here and there. These are free or conduction electrons. And these are fixed donor ion. So this is how you represent N-type semiconductor. Majority charge carriers are electrons. इसका भी डायग्राम याद कर लो. को याद करो, फिर इसकी कहानी भी लिखते हैं. दोबारा से एक बार बनाओ उसको. When pentavalent impurity atoms are mixed with pure semiconductor,
सर थोड़ा सा धीरे बोलना। धीरे बोलूंगा तो सुनाई नहीं देगा। सर मतलब आराम से डिक्टेट कर। मतलब अच्छा, लाउड स्लो एंड स्लो, है ना। देखो, व्हेन pentavalent impurity atoms are mixed with pure semiconductor, ब्रैकेट में लिखो जर्मेनियम, जर्मेनियम एटम, आगे लिखो जर्मेनियम एटम share its 4 electrons, germanium atom share its 4 electrons with the surrounding germanium atom and complete octet and complete octet. But pentavalent arsenic atom, but pentavalent arsenic atom has 5 electrons. Pentavalent arsenic atom has 5 electrons, out of which four are used, out of which four are used, out of which four are used to complete 4 covalent bonds, out of which four are used to complete 4 covalent bonds with the nearby germanium atoms, with the nearby germanium atoms. But the fifth electron is donated, but the fifth electron is donated to fifth electron is donated to the crystal lattice, which is used for conduction. Which is used for conduction. As a result, majority charge carriers, majority charge carriers are electrons in N-type semiconductor. Majority charge carriers are electrons in the N-type semiconductor, and impurity atom becomes positively charged ion. Impurity atom becomes positively charged ion, which is called donor ion, which is called donor ion. तो ये था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन बाय मिक्सिंग इम्प्योरिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डोपिंग. तो फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप एन टाइप इंडिविजुअली भी आ सकता है, 3 मार्क का है, दोनों भी आ सकते हैं. There could be 1 mark question like write two differences between pure type semiconductor. नहीं, 7 marks का चैप्टर है, इजी के मार्क्स हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पी एन जंक्शन. दोनों को, एक एन टाइप क्रिस्टल एक पी टाइप क्रिस्टल, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, वो बन जाएगा पी एन जंक्शन. एंड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस
एंड हो सकता है चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाए, इतना छोटा है। सो एंडिंग द क्लास 18 को वी हैव द टेस्ट्स, थैंक यू सर। राइट। बाय सर, Thank you, थैंक यू। sir. थैंक यू सर।